Bereshit bara Elohim et hashamayim va et haaretz. Our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. The one who is righteous, let him be more righteous. The one who is holy, let him be more holy. Mato oheleka Yakub miskonateka Israel. Greetings in his precious name. उनके बहुमूल्य नाम से जय मसीह की। Let us meditate on Psalm 27 today. आज भजन 27 पर मनन करेंगे। Psalmist David is giving an expression of faith. और यहाँ पर भजनकार अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। He is putting his trust in God. और अपना भरोसा यहोवा पर रखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us read Psalms 27 verse 1 and 2. भजन 27 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे अभी। Yes. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। The Lord is my light and my salvation. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। I need not be afraid of anybody. मुझे किसी से डरना नहीं। He is my light. वह मेरी ज्योति है। Whom shall I be afraid? और मैं किससे डरूं? He is the strength of my life. और वे ही मेरा गढ़ है। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, Jesus said, I am the light of the world. यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। Now, when I go and keep looking at Jesus Christ, और जब मैं जाकर यीशु मसीह की तरफ ताकता रहूं, that light comes on me. वह ज्योति मुझ पर आ जाती है। When Moses was coming down the mountain after being 40 days with the Lord, और जब मूसा 40 दिन उस पर्वत पर यहोवा के साथ रहकर वापस लौटे नीचे, people were not able to see the face of Moses. और लोग उनके मूसा के मुख की तरफ नहीं देख पाए। They told Moses to put a veil उन्होंने कहा कि एक पर्दा डालो अपने मुख because पर, his face was glowing with light. क्योंकि उनका चेहरा इतना प्रकाशमय था। When I am with the Lord, और जब मैं परमेश्वर के साथ होता हूँ, I will also be a light. और मैं भी एक ज्योति के समान रहूंगा। Jesus said, you are the light of the world. यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। When I can be the light of the world, और कब मैं जगत की ज्योति बन सकता हूँ? when I have the relationship with God, I can be the light of the world. और जब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रहे, तभी मैं ज्योति बन सकता हूँ। Here the psalmist is telling, यहाँ पर भजनकार कहते हैं, the Lord is my light and my salvation. और यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। I need not be afraid of anybody. मुझे किसी से डरना नहीं। Now you see verse 2. फिर दूसरा पद देखिए, When the wicked came against me to eat up my flesh, और जब कुकर्मी मेरे पास आए मुझे खा डालने के लिए, all my enemies and foes, they stumbled and fell. और वह खुद ही ठोकर खाकर गिर पड़े। How is it possible? कैसे मुमकिन है ये? Enemy is coming near you. अभी तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने आ रहा है, How they themselves can stumble? और कैसे वह खुद लड़खड़ाकर गिर सकते हैं? I have not taken anything and I have not hit them. I have not attacked them. और मैंने उन पर आक्रमण नहीं किया है, ना कि उन्हें किसी चीज से मारा है, They are stumbling and they are falling automatically. और वह खुद लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। How is it possible? कैसे मुमकिन है ये?
Now, here is the place where you see the power of the light of God. और ये वह स्थान है जहां पर आप परमेश्वर का सामर्थ, उन ज्योति का सामर्थ देखते हैं। Suddenly, you on 1,000 watts light or a 200 watts light on a particular person. अगर आप अचानक किसी मनुष्य पर 200 वॉट्स का रोशनी अगर आप ऑन करेंगे, He is not able to see anything. और वह कुछ देख नहीं पाता, His eyes is immediately closing और खुद ब खुद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, because he is not able to see the light. क्योंकि वह ज्योति को नहीं देख पाता है। So he is just doesn't want that light. और वह नहीं चाहता कि उसकी आंखें उसे देखें। That is the exact situation here. वही स्थिति है यहाँ पर। Verse 2 says, और 2 में ऐसा लिखा है, the enemies, the wicked people are coming to eat my flesh. और वह कुकर्मी जब मुझे खाद डालने के लिए आते हैं। What has happened here? क्या हुआ है यहाँ पर? The Lord came and stood with me. परमेश्वर आकर मेरे संग खड़े हुए। I am standing, मैं खड़ा हूँ, and with me the Lord is standing. मेरे साथ परमेश्वर खड़े हैं। The light is so powerful, और उनकी ज्योति इतनी सामर्थी है, they are stumbling automatically. और वह ठोकर खाकर गिर जाते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, many times you have prayed for God's protection. कई बार आपने परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। God, please, when I am going and coming, command your angels to come on the way. परमेश्वर, जब मैं बाहर जाऊं और वापस लौटूं, अपने देवदूतों को आप भेजें मेरी सुरक्षा के लिए। Enemy is coming, Lord. और Please, मेरे please शत्रु- protect me. मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, मेरी सुरक्षा करें। But here, लेकिन यहाँ पर no need for that prayer at all. उस प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं। If the Lord is with you, अगर परमेश्वर आपके संग हैं, He is light. वह ज्योति हैं, In that light, the enemies are automatically falling down. और उस ज्योति के कारण तुम्हारे शत्रु खुद ब खुद गिर जाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse 3 says, और 3 में ऐसा लिखा है, though an army should encamp against me, और चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, my heart shall not fear. तो भी मैं नहीं डरूंगा। Though a war should rise against me, और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, in this I will be confident. उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। Sometimes in our life, कभी कभी हमारे जीवन में many problems attack us at the same time. एक ही समय पर बहुत सी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। This side, some problem is come. इस प्रकार कोई समस्या, That side, some problem इस is come. तरफ से और कोई समस्या। What to do? क्या करें? Psalmist is confident. भजनकार बहुत ही निश्चिंत है। Let the army come और एक सेना भी आ जाए, in this powerful light which is with me. और ये जो सामर्थी ज्योति मेरे साथ है, Nobody can come near me. कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। Let there be a war. एक लड़ाई भी ठन हट जाए हमारे विरुद्ध, I am confident my God will take care of me. और मैं निश्चिंत हूँ परमेश्वर मुझे संभाल लेंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us read verse 4 and 5. अभी 4 और 5 पढ़ेंगे। Yes. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret place of his tabernacle he shall hide me, he shall set me high upon a rock. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। One thing I have desired, Lord. एक बात मैंने ऐसी इच्छा रखी है। The psalmist is telling about his desire. और भजनकार अपनी इच्छा के बारे में कहते हैं। What is his desire? उनकी इच्छा क्या है? Only a trace of it is clear in verse 4. और 4 में सिर्फ उसकी एक झलक बताई गई है। The main thing is going to come. और जो सच में प्रमुख है वह बाद में आएगी। One thing I have desired, Lord. और मैंने एक बात सोची है ईश्वर,
I want to come and dwell in your house. मैं आपके भवन में रहना चाहता हूँ। It is the beauty. The temple is the beauty. और वह ही बहुत ही मनोहरता है। And if we are dwelling in Lord, और अगर हम उसमें बस जाते हैं, we have already inside the Lord. और हम परमेश्वर के अंदर हैं। Now when the enemy is coming, और जब शत्रु आता है, when the trouble is coming, और जब संकट आता है, where are we? हम कहाँ हैं? We are not to be seen. हमें नहीं देख पाएंगे। Who is seen here? और यहाँ पर कौन दिखाई पड़ता He है? shall hide me in his pavilion, और वह मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा, in the secret place of his tabernacle. अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा। Where is the secret place in the tabernacle? और तंबू का गुप्त स्थान कौन सा होता है? It is the most holy place. और वह है सबसे पवित्र स्थान। I am not in the outer court. और मैं बाहरी आंगन में नहीं, I am not in the holy place. और मैं पवित्र स्थान में नहीं, I have gone to that most holy place. लेकिन मैं महापवित्र स्थान में चला गया हूँ। I am hiding inside him. और मैं उनके अंदर मैं छुपा हुआ हूँ। Our Lord Jesus Christ says, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, if you are in me and I am in you, you can bear more fruit. अगर आप मुझ में बने रहे और मैं आप में रहूं तो आप और भी फलवंत बनेंगे। If we become one, अगर हम एक हो जाएं, if we and the Lord become one, अगर हम और प्रभु एक हो जाएं, when enemy is coming, और जब शत्रु आता है, in the day of trouble, in the time of trouble, और उस संकट के समय, विपत्ति के दिन, we are already hidden. हम तो पहले से छुपे हुए हैं। We are inside his tabernacle. और उनके तंबू के गुप्त स्थान में हैं He हम, shall hide me. और वह मुझे छुपा लेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, can you go to that experience of becoming one with the Lord? क्या आप उस अनुभव में जा सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं? Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us read verse 6 and 7. और 6 और 7 पढ़ेंगे। And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifice of joy in his tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy upon me and answer me. अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा रहेगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। The psalmist was confident that God will protect him in time of trouble. और भजनकार को ये विश्वास था कि उस संकट विपत्ति के दिन में यहोवा उसकी सुरक्षा करेंगे। And the enemy came. और वह शत्रु आया, He stumbled himself. अपने आप लड़खड़ाया वो। What has actually happened? और सच में क्या हुआ है? The psalmist has gone and become one with the Lord, and he has gone inside the most holy place in the tabernacle. और भजनकार उस तंबू के महापवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के साथ एक हो गया है। The enemy has stumbled himself. और शत्रु खुद लड़खड़ा गया है। Now in verse 6 what we are seeing, और अभी 6 में हम क्या देखते हैं? God has given victory. परमेश्वर ने उन्हें विजय दी है। He has lifted the head high of the psalmist. और भजनकार का सिर ऊंचा उठाया है। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, when we are hiding inside the secret place of the Lord, और जब हम यहोवा के गुप्त स्थान में छुपे रहते हैं, victory is sure 100%. और निश्चित है कि हम विजय पाएंगे। Because the person who is fighting against you is actually not fighting against you. क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध लड़ रहा है वह सच में तुम्हारे विरुद्ध नहीं लड़ रहा, They are fighting against God. लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। They are fighting against God. और वह परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। Definitely the enemy is going to lose. और जरूर वह शत्रु हार जाएगा। And because of that we are giving thanksgiving and praises to God. और उसके लिए हम धन्यवाद और उनकी स्तुति करते हैं परमेश्वर की।
And the psalmist is telling him, और भजनकार ऐसा कहते हैं, Hear, O Lord, when I cry with my voice. और Verse 7. और साथ में कहते हैं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, Have mercy also upon me and answer me. तुम मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। Now, after all this, the psalmist is coming to the main activity. और अभी ये सब करने के बाद सच के मुख्य कार्य पर भजनकार आते हैं। In verse 4, I told you, और 4 में मैंने आपको बताया, one thing I have desired, एक बात मैंने इच्छा की है, that will I seek. और उसी के यत्न करूंगा मैं। That is only a trace. वह तो सिर्फ एक झलक थी। Now the psalmist comes to the very main portion of his request. और अभी भजनकार अपनी विनती के मुख्य भाग पर आते हैं। And the key verse of Psalm 27 is verse number 8. और भजन 27 का जो मुख्य पद है वह है 8 नंबर। When you said, Seek my face, my heart said to you, Your face, Lord, I will seek. तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। The most important request which we can have to our Lord is, और सबसे मुख्य विनती जो हम अपने परमेश्वर के आगे रख सकते हैं, one thing I have desired, Lord, और एक बात मैंने इच्छा की है परमेश्वर, I want to see your face. मैं आपके दर्शन का खोजी रहूं, I want to see your face. और आपके मुख को मैं देखना चाहता हूं। How many of us has had such a request to God? हम में से कितने लोगों ने ऐसी विनती की है ईश्वर से, I want to see your face, Lord. मैं आपके मुख को देखना चाहता हूं परमेश्वर। Blessed are the pure in heart, धन्य है वो जो हृदय से शुद्ध होते हैं, for they will see God. क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। If you are going to have a request, I want to see the face of God, अगर आपके अंदर ऐसी विनती है कि मुझे परमेश्वर के मुख को देखना है, the requirement is we have to have a pure heart. और उसकी एक योग्यता है कि हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। One person asked that I want to see you, Lord, और एक ने कहा कि परमेश्वर मुझे आपको देखना है, and his name was Moses. और उसका नाम था मूसा। God agreed to his request, परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना and God said, और ये कहा, Nobody has seen me and lived, कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह पाएगा, but I will reveal myself to you लेकिन मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। as I am passing by. और जैसे मैं वहां से गुजर कर जाऊंगा तुम्हारे आगे से, You can see the back. और तुम मेरे पीछे मुझे देख सकते I हो। will hide you with my hand. मैं अपने हाथ से तुम्हारे मुख को ढांप दूंगा। Moses was able to see the presence of God. और मूसा उनके समूह को एहसास उसका महसूस कर पाया। Moses was able to see the Lord passing. और मूसा ने देखा जब प्रभु वहां से गुजर कर गए। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, do you know the greatest opportunity or the greatest gift what we can have in this life is, क्या आप जानते हैं इस जीवन में जो सबसे उत्तम भेंट जो हम पा सकते हैं या मौका पा सकते हैं, we seeing the face of God. और परमेश्वर के मुख को देखना। For 1 minute or 1 moment, can you bring that in front of your mind? और 1 मिनट के लिए क्या अपने काल्पनिक मन में आप उसे लेकर आ सकते हैं? When our life leaves this world, और जब हमारा जीवन इस संसार में खत्म हो जाएगा, we are going to see our master. हम अपने मालिक को देखेंगे, We are going to see the creator of the universe. और इस पूरे संसार, पूरे भूमंडल को जिन्होंने बनाया उस सृष्टिकर्ता को देखेंगे। What is that first thing you are going to speak to our Lord? और वो कौन सी पहली बात है जो आप परमेश्वर से करेंगे? Many years before, बहुत साल पहले there was a sister who was born blind. और एक
बहन थी जो अंधी थी जन्म से ही। Her name was Fanny Crosby. उसका नाम था फैनी क्रॉस्बी। She has written many songs in English. उन्होंने अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर गीत लिखे हैं। Many famous hymns which we are seeing today was written by Fanny Crosby many years before. बहुत साल पहले उसने इतने मशहूर गीत लिखे हैं जो आज तक सब लोग गा रहे हैं। But she was always happy in life. और हमेशा खुश रहती थी वो। Somebody asked her one day, किसी ने एक दिन उसे ऐसा सवाल किया, "Are you not upset you're born blind? क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं कि तुम अंधी हो? Never you have seen the world. कभी तुमने संसार को नहीं देखा You have never seen the beautiful birds. और सुंदर पक्षियों को नहीं देखा है। You have never seen the colorful flowers. तुमने कभी इन रंग बिरंगे फूलों को नहीं देखा है। You have never seen anything. कुछ नहीं देखा तुमने। Are you not upset about it?" क्या तुम इसके बारे में दुखी नहीं हो? At that time she told, और तब उसने ये जवाब दिया, "I am the most blessed person amongst anyone who is born. और जन्म लिए हर एक के बीच में मैं सबसे धन्य हूँ, Because I know one day I will die. क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक दिन मेरी मृत्यु होगी And when I die, और जब मैं मर जाऊंगी my eyes will be opened. मेरी आंखें खुल जाएंगी। And when I open my eyes, और जब मैं अपनी आंखों को खोलूंगी, the first person whom I will see और जो सबसे पहला मनुष्य जिसको मैं देखूंगी is my Lord Jesus Christ." वह मेरे प्रभु यीशु मसीह होंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, how many of us have a desire or want to see the face of God? और हम में से कितनी ये लालसा और इच्छा रखते हैं कि अपने परमेश्वर का मुख हम देखें। The psalmist is telling in verse 8, और भजनकार 8 में ऐसा कहते हैं, "Seek my face. मेरे दर्शन के खोजी रहो। My heart said to you, और मेरा मन ऐसा कहता है your आपसे, face, Lord, I will seek." हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। And verse 9 he says more, और 9 में ऐसा कहते हैं, "Do not hide your face from me. अपना मुख मुझसे ना छिपा Do परमेश्वर, not turn your servant away in anger. अपने दास को क्रोध करके ना हटा। You have been my help. तू मेरा सहायक बना है। Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation." मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। When is it we can't see the face of God? और कब है जब हम परमेश्वर का मुख नहीं देख पाते? When we go away from Him. जब हम उनसे दूर चले जाते हैं। If our heart is not pure, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, if we go into the darkness of the pit, और अगर हम उस खाई के अंधकार में चले जाते हैं, His face is hidden to us. उनका मुख हमसे छुपाया जाता है। The punishment when a person is put in hell is, और नरक में जब कोई मनुष्य डाला जाता है उसका दंड ये होता है। now you know the fire, the worms and many things where there is description about hell in the Bible. और हमने देखा है कि उस नरक के बारे में कई वर्णन किए गए हैं कि वह आग का तालाब और कितने ही कीड़े मकोड़े होते हैं वहां पर। Keeping all that one side, और ये सब एक तरफ रख के, more than that the punishment is और इन सब से बड़ा दंड क्या होता है? a permanent separation from God. और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिए जाना। A permanent separation from God. हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर दिए जाना। God who was so loving to you, और परमेश्वर जो आपसे इतने प्रीति रखते थे, He came again and again and again and told about the salvation what He is offering to you. और बार बार आपके सामने आए और आपको उस उद्धार के बारे में कहा जो उन्होंने आपको दिया है। When we reject and reject, और हम इनकार करते हैं और इनकार करते रहते हैं। one day एक दिन permanently His face is hidden from us. हमेशा के लिए उनका मुख हमसे छुपाया जाता है। So what is the biggest suffering in hell? और उस नरक में कौन सी सबसे बड़ी पीड़ा की बात है? We cannot meet our Lord again. हम अपने प्रभु से फिर कभी नहीं मिल सकते। If this is not going to cause pain to you, और अगर ये बात आपको पीड़ा नहीं पहुंचाती है,
then check your love, whether you love God truly. तो आप ये परखें कि क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। We cannot see the face of God. हम परमेश्वर का मुख नहीं देख पाएंगे। Is it not paining you? क्या ये बात आपको पीड़ित नहीं करता है? My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, how many years it is from the time we are saved? कितने साल बीत चुके जब आपका उद्धार हुआ। Are you seeking the face of God? क्या आप परमेश्वर के मुख की खोजी रहते हैं, Or are you only seeking the hand of God? या सिर्फ उनके हाथों को ताकते रहते हैं Lord, आप? give me this, give me this, give me this, give me this, give me this. How many times? कितनी बार आप यही मांगेंगे, परमेश्वर मुझे ये दीजिए, परमेश्वर मुझे वो दीजिए, और यही मांगते मांगते रहते हो। Will you not desire to seek the face of God? क्या आप परमेश्वर के मुख को नहीं खोजना चाहेंगे? Lord, I want to see your face. परमेश्वर, मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ। Don't hide your face from me. अपना मुख मुझसे नहीं छिपाना। I cannot live without that. उसके बगैर मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा परमेश्वर। When you go to your prayer room, और जब आप अपने प्रार्थना कमरे में जाओ, although physically we are not able to see God, शारीरिक रूप से हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, are you able to feel the presence of God? लेकिन क्या आप उनके सम्मुख को महसूस कर पाते हैं? Or are you feeling a very blank feeling? या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बात की कमी है वहां Just पर, for formality of speaking some words to God, you don't know whether it is reaching Him or not. और आप ऐसे ही अपने मुंह से कुछ बातें कहकर आते हैं, ये नहीं जानते कि सच में वह परमेश्वर के पास पहुंचे या नहीं। Today, will you take a conscious decision? और क्या आज एक आप निर्णय लेंगे जीवन में, I cannot live without my Lord. मैं अपने प्रभु के बगैर नहीं जी सकता हूँ, I want to see the face of God. और मैं परमेश्वर के मुख को देखना I चाहता want हूँ, to see the face of God. और मैं परमेश्वर के मुख को देखना चाहता हूँ। Verse 10 says, और 10 में ऐसा लिखा है, when my father and my mother forsake me, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, then the Lord will take care of me. परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, there came a situation in your life आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आई where you were not able to see the face of your father or mother. जहां पर अपने पिता या माता के मुख को आप नहीं देख पाए। For some of you who are watching this, और आप में से कुछ लोग जो ये देख रहे हैं, due to some reason, कुछ कारण से, maybe they are not there anymore. और शायद वो इस संसार में नहीं है। They loved you so much, आपसे इतना प्रेम किया उन्होंने, but today they are not there. लेकिन आज वो तुम्हारे साथ नहीं। And the psalmist is telling, भजनकार ऐसा कहते हैं, my father and my mother have hidden their face from me. मेरे माता पिता ने तो अपना मुख मुझसे छुपा लिया, I am not able to see their मैं उन्हें face. नहीं देख पाता हूँ। If you also hide your face, अगर आप भी अपना चेहरा छिपा लेंगे मुझसे, what will I do, Lord? मैं क्या करूँगा प्रभु? What will I do, Lord? मैं क्या करूँगा परमेश्वर? The psalmist has a confidence today. और भजनकार के अंदर एक विश्वास है, Then the Lord will take care of me. यहोवा मुझे संभाल लेगा। Have that confidence. और तुम भी वह विश्वास के साथ रहो, Somebody whom you loved, और जिसे आपने बहुत प्रेम किया, you are not able to see their face today. आज आप उनका मुख नहीं देख पाते Don't हैं। worry, my dear child of God. तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय ईश्वर की संतान, We'll meet them in eternity. और अनंत जीवन में उनसे मुलाकात होगी। God has not forsaken us. परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है, God has not hid his face from us. परमेश्वर ने अपना मुख हमसे नहीं छुपाया है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Seek his face today. और उनके मुख के खोजी बनो आज, Seek his face today. और उनके मुख के खोजी बनो आज। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us read verse 11 and 12. 11 और 12 भी पढ़ेंगे। Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me,
and such as breathe out violence. हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठी साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। Teach me your way, O Lord, और अपने मार्ग मुझे सिखा परमेश्वर, and lead me in a smooth path, Lord. और मुझे ऐसे चौरस रास्ते पर ले चल। Do not deliver me to the will of my enemies. मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़। I am surrounded in this world with lot of false witnesses. और मेरे इर्द गिर्द ऐसे झूठी साक्षी देने वाले लोग भरे हैं They परमेश्वर, all are breathing violence. और वे सब मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं They परमेश्वर, all want to kill me. और वे सब मुझे मारना चाहते हैं परमेश्वर। Lord, परमेश्वर, for me to see your face, और आपके मुख को देखने के लिए there is only one way. एक ही रास्ता है मेरे लिए। You hold my hand and take me. आप मेरा हाथ पकड़कर अगुवाई करें परमेश्वर, Don't leave me with these enemies. और इन शत्रुओं के साथ मुझे मत छोड़ देना। I cannot do anything. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Verse 13. और 13 पढ़ेंगे। I would have lost heart unless I had believed that I could see the goodness of the Lord in the land of the living. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। Here, David, psalmist, completes this psalm with a confident note. यहाँ पर भजनकार एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस भजन को पूरा करते हैं। I am confident I am going to see the goodness of the Lord in the land of the living. और मुझे विश्वास है कि जीवितों की पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की भलाई को You देखूंगा। and me have a confidence, my dear child of God. आपको और हमें ऐसा विश्वास है मेरे प्यारे ईश्वर की We संतान, will see the goodness of the Lord in the land of the living. और जीवितों की पृथ्वी पर हम यहोवा की भलाई को देखेंगे, He will take us there. और हमें ले जाएंगे वहां पर। That day is coming और वो दिन बहुत करीब आ रहा है where you are going to see the face of the Lord. जहां पर आप परमेश्वर के मुख को देख पाएंगे। He completes with this verse. और इस वचन के साथ वो पूरा करते हैं। Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. और ये कहते हैं यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। Many times doubts come and surround us. कई बार शक हमें घेर लेते हैं। Will I go to heaven? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? Surely will God will take me? क्या सच में ईश्वर मुझे ले जाएंगे? Surely will I come out of my sin? और क्या मैं अपने पाप से बाहर निकल पाऊंगा? God gives a confirmation. परमेश्वर आपको आज ये विश्वास दिलाते हैं। Wait on the Lord. आप मेरी बाट जोते रहो, Be of good courage. और आप हियाव बांध कर रहो, He will strengthen your heart. और वह तुम्हारे हृदय को दृढ़ करेंगे। Wait, I say, on the Lord. और तुम बहो यहोवा की बाट जोते रहो, Be with kavah with the Lord. और आप परमेश्वर के साथ कवा में रहें। Be united with the Lord. परमेश्वर के साथ एक बनकर आप रहें। You will see the face of God. आप परमेश्वर के मुख को देख पाएंगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Shall we close our eyes in prayer? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रार्थना में? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for your revelations in this psalm. और इस भजन में आपके प्रकाशित वाक्य के लिए धन्यवाद One परमेश्वर। thing I seek from you, Lord. और एक बात को मैं विनती करता हूँ, I desire one thing from you, Lord. और एक ही बात में आपसे मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, I want to see your face. कि मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ। Do not take that blessing from me. उस आशीष को मुझसे नहीं छीनना। I want to see your face. मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ। Hold my hand, hold our hand and lead us to that path. हमारे हाथों को पकड़कर उस मार्ग पर चलाएं परमेश्वर। Whoever is asking this sincerely in their heart, और जो भी सच्चे मन से ये मांग रहा है अपने हृदय से परमेश्वर, grant it to them, Lord. आप उन्हें उसे पूरा करें, Grant it to them, Lord. उन्हें आप दे दें परमेश्वर। We thank you so much. आपका धन्यवाद करते We हैं, give you the glory, Lord. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्ग। Amen, amen. आमेन और आमेन। Praise the Lord, my dear children of God. प्रभु की महिमा हो
मेरे प्यारे ईश्वर की संतान, seek the face of Lord. और परमेश्वर के मुख को खोजो तुम, Wait on the Lord. और उनकी बाट जोहते रहो। Sure, we are going to meet our Lord. जरूर हम अपने प्रभु से मिलेंगे। His coming is very soon. उनका आगमन बहुत ही जल्द है We will meet him. और हम उनसे मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you.